बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। इस न्यूज के टाइटल स्पॉन्सर है हयात पैलेस वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल। अन्य स्पॉन्सर है रामकृष्ण मिशन आश्रम प्राइवेट ITI। इसके अलावा होटल पायल इन। आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय ने 2026-27 का बजट पेश किया, जिसमें कुल अनुमानित आय 454.93 करोड़ रुपए और व्यय 411.05 करोड़ रुपए रखा गया है। वहीं उनके इस बोर्ड का ये अंतिम पूर्ण बजट था। बजट में सड़क, जल निकासी, स्ट्रीट लाइट और जल आपूर्ति समेत आधारभूत संरचना के विकास पर विशेष जोर दिया गया है। इसके साथ ही शिक्षा, सांस्कृतिक केंद्रों के नवीनीकरण, पर्यावरण सुधार, नाइट बस सेवा और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कई योजनाएं प्रस्तावित की गई। निगम ने ग्रीन सिटी पहल, टैक्स में राहत और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर भी फोकस किया है। অর্থবর্ষের পূর্ণাঙ্গ এবং 2025-26 সংশোধিত প্রস্তাব পেশ মাননীয় চেয়ারম্যান মহাশয়, ওয়েস্ট বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্ট 2006 এর 69 নম্বর ধারা অনুসারে 2026-27 অর্থবর্ষের জন্য অনুমিত আয় ব্যয় বরাদ্দের ভিত্তিতে প্রস্তাবিত বাজেট এবং 2025-26 এর সংশোধিত বাজেট সভার আলোচনা এবং অনুমোদনের জন্য পেশ করছি। আমরা সকলে অবগত যে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে আসানসোল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক প্রেক্ষাপটে এবং এক গুরুত্বপূর্ণ শহর হিসেবে বিবেচিত হয়। বিগত কয়েক দশকে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে নগরায়নের ফলে রাজধানী শহরের পরে রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর হিসেবে আসানসোল স্বমহিমায় উজ্জ্বল। সর্বোপরি দেশের অন্যতম দ্রুত উন্নয়নশীল শহর হিসেবে আসানসোল ব্যাপকতা অতি দ্রুত বৃদ্ধির পথে অতিক্রম করছে। মহাশয়, উন্নয়ন শব্দের অন্তর্নিহিত অর্থ হল এলাকার সমস্ত ধর্ম নির্বিশেষে সামগ্রিক অর্থ, সামাজিক উন্নয়ন এবং জীবনযাত্রার মান, কর্মদক্ষতা, ব্যবহারিক জ্ঞান বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান, প্রশাসন সক্রিয় অংশগ্রহণ তথা সরাসরি মতামত প্রদান, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং পরিষেবাগুলির পর্যবেক্ষণে যুক্ত হওয়াকে বোঝায়। আর এই মর্মে উপরিউক্ত মানদণ্ড এবং অন্যান্য মানব উন্নয়নের সূচকগুলির ইতিবাচক পরিবর্তন এবং সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে আজকের সভায় 2026-2027 অর্থবর্ষের বাজেট পেশ করছি। আমাদের শ্রদ্ধেয় মুখ্যমন্ত্রী যে জনদরদীয় মানবিক উন্নয়নের দিশা দেখিয়েছেন, সেই পথ অনুসরণ করে রাজ্যের মানুষের কাছে প্রকৃত উন্নয়ন পৌঁছে দেওয়ার প্রতিশ্রুতিবদ্ধতায় আমাদের এই বাজেট প্রস্তুতির অনুপ্রেরণা। প্রভূত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আসানসোল শহরের জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতা, ব্যয়, প্রতিশ্রুতি পূরণের এবং ইতিবাচক আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের রূপায়ণের লক্ষ্যে দপ্তর ভিত্তিক প্রস্তাবিত কর্মতালিকা বাজেট বরাদ্দ উপস্থাপন করছি। সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং সামগ্রিক পরিবেশ উন্নয়নের आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हाँ, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध हैं। ये सुविधाएं आपको किफ़ायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की। बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। স্কিল ইন্ডিয়া গড়তে উদ্যোগী হয়েছে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI। মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের স্কিল ডেভেলপ করতে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI এর উদ্যোগ জীবন নির্মাণে আলোর দিশা। আর এরই মাধ্যমে বিগত 7 বছর ধরে সাফল্যের সাথে এগিয়ে চলেছে। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI এর বিভিন্ন কোর্সগুলির মধ্যে রয়েছে ইলেকট্রিশিয়ান কোর্স ও ফিটার কোর্স 2 বছরের জন্য,
ওয়েল্ডার ও কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যান্ট কোর্স 1 বছরের জন্য। শুধু তাই নয়, প্লেসমেন্টেরও ব্যবস্থা চোখে পড়ার মতো। বিভিন্ন কোম্পানি প্লেসমেন্টের মাধ্যমে আইটিআই ট্রেনীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে এগিয়ে এসেছেন। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রী উভয়েই প্লেসমেন্ট পেয়েছে। কোম্পানির কর্তৃপক্ষ তাদের দক্ষতা এবং আচরণ নিয়ে প্রসন্ন। তাই আমাদের লক্ষ্য ছাত্র ও ছাত্রী উভয়ের দক্ষতাকে সমান্তরালভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। ভর্তি সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ জানার জন্য এখনই যোগাযোগ করুন 7585874749 এই নম্বরে। आसनसोल उत्तर विधानसभा क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस को झटका देते हुए टीएमसी नेता मोहम्मद इरफान रायन अपने कई समर्थकों के साथ ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM में शामिल हो गए। जिला अध्यक्ष दानिश अजीज ने सभी को पार्टी में शामिल कराया। इस मौके पर एजाज अहमद, अरशद खान सहित जिला और विधानसभा स्तर के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। पार्टी नेताओं ने कहा कि इस शामिल होने का उद्देश्य संगठन को मजबूत करना और आगामी विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करना है। आज हम लोग मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिला पश्चिम बर्दवान की कमेटी आसनसोल उत्तर विधानसभा के ओके रोड ऑटो स्टैंड के पास यहाँ हमारे इरफान भाई हैं और हमारे दीगर भाई हैं जो मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ज्वाइन किए। हमारे सदर दानिश अजीज साहब ने इन्हें अपने हाथों से जो परचम है हमारे मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, उस परचम को पकड़ाकर आज इन लोगों को, तमाम भाइयों को मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन में। आसनसोल में भाजपा के युवा संगठन भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से परिवर्तन यात्रा के तहत बाइक रैली आयोजित की गई। ये रैली बनपुर के त्रिवेणी मोड़ से शुरू होकर विभिन्न इलाकों से गुजरते हुए मुर्गासौल दुर्गा मंदिर में समाप्त हुई, जहां भाजपा नेताओं ने पूजा अर्चना की। इस कार्यक्रम में आसनसोल दक्षिण के विधायक अग्निमित्रा पाल, भाजपा नेता कृष्णा प्रसाद और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। रैली में शामिल युवाओं ने भाजपा के समर्थन में नारे लगाए और पार्टी के झंडे के साथ बाइक रैली निकाली। भाजपा नेता कृष्णा प्रसाद ने कहा कि ये परिवर्तन यात्रा आगामी विधानसभा चुनाव से पहले जनता तक ये संदेश पहुंचाने के लिए निकाली गई है कि पिछले 15 वर्षों में तृणमूल कांग्रेस के शासन में क्षेत्र में उपेक्षित विकास नहीं हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता की समस्याओं की अनदेखी की गई और लोग अब बदलाव चाहते हैं। वहीं अग्निमित्रा पाल ने कहा कि राज्य में परिवर्तन की लहर साफ दिखाई दे रही है और आने वाले चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा। उन्होंने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में हुए विकास का हवाला देते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में भी बदलाव के बाद विकास की नई धारा शुरू होगी। পরিবর্তন যাত্রা শুরু হয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বে এবং এই পরিবর্তন যাত্রা গতকাল যেটা শুরু হয়েছে আজকেও বিভিন্ন জায়গায় শুরু হচ্ছে। সেখানে আসানসোল জেলার ভারতীয় জনতা পার্টির যুব মোর্চার তরফ থেকে পরিবর্তন র্যালি, বাইক র্যালি শুরু করা হচ্ছে। বাংলার মানুষ আমরা পরিবর্তন চাইছি। আমরা ভেবেছিলাম মমতা ব্যানার্জি তার কথা রাখবে, ডবল চাকরির কথা বলেছিলেন এই যুব সমাজের জন্য, কিন্তু যুব সমাজ একটাও চাকরি পাননি মমতা ব্যানার্জি, আপনি সেটা ভালো করে জানেন। বরঞ্চ আমাদের ছেলেমেয়েরা আমাদের ছেড়ে অন্য রাজ্যে চলে গেছে পেটের দায়ে। আজকে শিক্ষা চুরি হয়েছে, ছেলেমেয়েরা শিক্ষক শিক্ষিকার যারা যোগ্য তারা চাকরি পায়নি। আজকে 8000-এর ওপর স্কুল বন্ধ হয়ে গেছে। স্কুলে যে মিড ডে মিল দেওয়া হচ্ছে সেখানে অর্ধেক ডিম দেওয়া হয়, আর সেই মিড ডে মিলের টাকা আপনি বকটুয়ের যারা মারা গেছিল, যাদেরকে মেরে দেওয়া হয়েছিল, আপনি তাদের কম্পেনসেশন দিতে ব্যবহার করেছেন। আজকে যে সংস্কৃতি, যে সভ্যতা পশ্চিমবঙ্গে, সেটা ভেঙে পড়েছে। আজকে আসানসোলে জায়গায় জায়গায় জল নেই এবং আজকে 51টা গ্রাম যে জল সাপ্লাই করে সেটা মমতা ব্যানার্জি আপনার দল বালি চুরি করে করে দামোদরকে শেষ করে দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন নদী শেষ হয়ে গেছে। আজকে মানুষ জল পাচ্ছে না, কারণ আপনার দলের লোকেরা চুরি করেছে। শুধু বালি নয়,
আপনার দলের লোকেরা মাটি চুরি করে, পাথর চুরি করে, বোল্ডার চুরি করে, গাছ চুরি করে, জমি চুরি করা হচ্ছে। হিন্দুদের জমি, আদিবাসীদের জমি চুরি করে জিহাদিদের নামে করে দেওয়া হচ্ছে বিএলআরও অফিসে ঘুষ দিয়ে। তাই বাংলার মানুষ পরিবর্তন চায়। আপনার উপর ভরসা করে 2011 সালে ভরসা করে, আপনার দলের উপর ভরসা করে বাংলার মানুষ ভুল করেছে, এটা আমরা। आसनसोल के बेरार इलाके में स्थित कॉफी हाउस में इंडिया अवेक के बैनर तले अंतर्राष्ट्रीय समाज सेवी फिरोज खान एफके द्वारा संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान उन्होंने देश की वर्तमान स्थिति पर गंभीर चिंता जताते हुए कई अहम मुद्दों को सामने रखा। फिरोज खान एफके ने कहा कि देश में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी क्षेत्रों में स्थिति चिंताजनक होती जा रही है। उनका कहना था कि निजी अस्पतालों में इलाज आम आदमी की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। कई मामलों में लोगों को इलाज के लिए अपनी जमीन और गहने तक बेचने पड़ रहे हैं। वहीं सरकारी स्कूलों और अस्पतालों की स्थिति पर भी उन्होंने चिंता जताई और कहा कि वहां गुणवत्ता और व्यवहार दोनों में सुधार की जरूरत है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इंडिया अवेक केवल सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करते हुए हर सामाजिक मुद्दे पर आवाज उठाएगा। आज ये प्रेस मीट का असल मकसद ये चीज़ है कि आप लोग सोशल मीडिया में देख रहे होंगे, एक संस्था का नाम बार बार आ रहा है और बहुत सारी आवाज़ उठाई जा रही है। वो नाम है इंडिया अवेक, मतलब जागरूक भारत, बेदार हिंदुस्तान। ये सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक देश के 140 करोड़ लोगों का ये एक आवाज़ है। ये आवाज़ इंसाफ के लिए, देश में कुछ भी किसी के साथ अन्याय हो रहा है उसके लिए ये आवाज़ उठेगी। तो ये इंडिया अवेक के नाम से एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और जैसा कि मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ कि ये सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये देश के 140 करोड़ लोगों का एक आवाज़ है। जो आवाज़ बहुत वक्त तक क्या होता है कि किसी स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो हमारे देश का, वो आवाज़ कोई ना कोई वजह से पहुंच नहीं पाता है, या फिर बहुत लोग जो ऐसा होता है कि उनके साथ समाज में गलत हो रहे हैं, मगर वो अपना कभी किसी डर की वजह से, कभी उनके अपनी माली हालत की वजह से वो आवाज़ नहीं उठा पाते। तो इंडिया अवेक इसका आवाज़ उठाएगा और इंडिया अवेक जो आवाज़ उठाएगा तो वो आवाज़ बिल्कुल पूरे हिंदुस्तान की आवाज़ होगी और ये आवाज़ जब उठ जाएगा तो ये आवाज़ बिना डर का उठेगा, बिना कोई प्रेशर का उठेगा और ये आवाज़ कभी भी नहीं दबेगा। क्योंकि हो सकता है कि ये आवाज़ के लिए एक व्यक्ति को, दो व्यक्ति को, फिरोज खान को या किसी को दबाया जा सकता है, मगर ये आवाज़। आसनसोल में एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया के बाद जारी अंतिम मतदाता सूची को लेकर विवाद सामने आया है। कई लोगों के नाम सूची से हटने के आरोपों के बीच एक चौंकाने वाला मामला आसनसोल दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से सामने आया है। आसनसोल दक्षिण के निवासी उदय मुखोपाध्याय, जो बीसी कॉलेज में कार्यरत है और चुनावी प्रक्रिया से भी जुड़े रहे हैं, ने दावा किया कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में उनका नाम मौजूद था, लेकिन अंतिम सूची में अचानक उनका नाम गायब हो गया। उनका घर बर्नपुर के श्यामबांध इलाके में है। उदय मुखोपाध्याय के अनुसार इस संबंध में उन्हें किसी प्रकार की सुनवाई के लिए भी नहीं बुलाया गया। उन्होंने बताया कि उनके परिवार के अन्य सभी सदस्यों के नाम अंतिम सूची में बरकरार है, लेकिन सिर्फ उनका नाम ही हटा दिया गया है। 1989 में जन्मे उदय ने इस पूरे मामले पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना किसी स्पष्ट कारण के नाम हटाया जाना गंभीर सवाल खड़े करता है। साथ ही उन्होंने आशंका जताई कि इसके पीछे राजनीतिक उद्देश्य भी हो सकता है। उन्होंने चुनाव आयोग से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर जल्द से जल्द उनका नाम फिर से मतदाता सूची में शामिल करने की मांग की है।
ঘটনা ঘটেছে? এই যে এসআইআরের যে ফর্ম ফিল আপ চলছিল, আমি একদম নির্ভুলভাবে এসআইআরের যে ইনোমোলেশন ফর্ম সেটা আমি ফিল আপ করি, জমা দিই। আমি খসড়া লিস্ট আমি চেক করতাম, আমার নাম দেখতাম, আমি আমার বাবার নাম, আমার মিসেসের নাম। কাল যখন চূড়ান্ত পর্যায়ের যে লিস্ট বেরোলো, আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি যে আমার বাবার নামটা আছে, আমার মায়ের নামটা আছে, আমার মিসেসের নামটা আছে, শুধু আমার নামটা দেখছি যে নেই, কন্ট্যাক্ট ইওর বিএলও দেখাচ্ছে। আমি তোমার বিএলওকে ফোন করি, বিএলও আমাকে বলে যে তোমার নামটা ডিলিট হয়ে গেছে, দিয়ে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে পাঠায় যে আমার ছবির উপরে লেখা আছে ডিলিট। তো আমি নিরপেক্ষতা নিয়ে, আমি নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন একটাই রইল যে আমি একজন চাকরিজীবী, আমাকে ইলেকশন কমিশন ভোটের কাজে ব্যবহৃত করে। আমি 2014 সাল থেকে লোকসভা বিধানসভা ভোটের আমি ডিউটিতে যাই। আমি একজন বৈধ ভোটার। আমার 1982 সালে আমার ঘরের দলিল, আমার 89 আমার জন্ম সাল, আমি এখানকার বাসিন্দা, আমার পড়াশোনা এখানে বার্নপুরের, আমার স্কুল কলেজ বার্নপুরের। আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি এবং আমি খুবই নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছি নির্বাচন কমিশনের কাছে যে এটা কি কোনো রাজনৈতিক দলের কি তাহলে কি যে অঙ্গুনি হিলনের কাজ করছে? আপনার কি হিয়ারিংয়ে ডাকা হয়েছে? আমাকে হিয়ারিংয়েও ডাকা হয়নি। আমি প্রত্যেক দিন আমি বিএলওর সাথে কন্ট্যাক্ট করেছি, আমি জিজ্ঞেস করতাম, আমি নিজে থেকে জিজ্ঞেস করেছি কোনো অসুবিধা নেই, কিছু নেই, বলছি না আপনাদের কুছ নেই, কিচ্ছু নাই আপনার। কিন্তু তারপরেও দেখছি যে আমারটা ডিলিট। আমি অবাক, আমি কাল থেকে আমি মানসিক অবসাদে ভুগছি। তাহলে কি আমি ভোট দিতে পারবো না? আপনার নাম? আমার নাম হচ্ছে উদয় মুখার্जी। दुर्गापुर में क्रिकेट मैच के दौरान हुए विवाद ने अचानक हिंसक रूप ले लिया, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए क्लब के सचिव समर सिकदर समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार कल खेले जा रहे क्रिकेट मैच के दौरान पिच पर महिला द्वारा स्कूटी लेकर आने को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हुई, जो देखते ही देखते झड़प में बदल गई। स्थिति को नियंत्रित करने पहुंची पुलिस टीम पर भी हमला किया गया, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। घटना के बाद दुर्गापुर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए क्लब के सचिव समर सिकदर सहित कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आज सभी आरोपियों को दुर्गापुर महकमा अदालत में पेश किया गया, जहां न्यायाधीश ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 4 दिनों की पुलिस हिरासत का आदेश दिया। अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद आसनसोल नगर निगम के डिप्टी मेयर वसीमुल हक का नाम एजुडिकेशन विचाराधीन श्रेणी में रखा गया है। बताया गया है कि सुनवाई के दौरान उन्हें उपस्थित रहने के लिए बुलाया गया था, लेकिन उस समय वे अस्वस्थ होने के कारण हैदराबाद में थे। उन्होंने सभी जरूरी दस्तावेज अपने परिवार के सदस्य के माध्यम से नियमानुसार जमा करवाए थे। इसके बावजूद उनका नाम अभी भी विचाराधीन रखा गया है। वसीमुल हक ने कहा कि उनके पास स्कूल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, वोटर कार्ड, पैन कार्ड और आधार कार्ड सहित सभी वैध दस्तावेज मौजूद है, जिन्हें सुनवाई में प्रस्तुत किया गया था। इसके बावजूद उनका नाम सूची में शामिल नहीं किया गया। उन्होंने ये भी बताया कि वे 3 बार जनप्रतिनिधि के रूप में चुने जा चुके हैं और इसके सरकारी प्रमाण भी उनके पास है। इस पूरे मामले पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा, मेरे पास सभी दस्तावेज होने के बावजूद मेरा नाम एजुडिकेटेड में डाल दिया गया। अगर एक जनप्रतिनिधि के साथ ऐसा हो सकता है तो आम लोगों के साथ क्या हो रहा होगा? ये दिखाता है कि चुनाव आयोग किसी राजनीतिक दबाव में काम कर रहा है। बंगाल की जनता सब देख रही है। क्या कहेंगे? मैंने अभी जो गवर्नमेंट का साइट दिया उस साइट में चेक किया तो एडजस्टमेंट दिखा रहा है, जबकि SIR फॉर्म जो मिला था इसमें मेरा खुद का सेल्फ डिक्लेरेशन है, इसलिए हमारा नाम खुद 2002 में था और 2002 का वोटर लिस्ट तालिका, इसमें हमारा नाम मोहम्मद वसीमुल हक, पिता का नाम SM लईक अकबर, यही फॉर्म मैंने भरा। इसके बाद हमारा ये स्कूल सर्टिफिकेट है मोहम्मद वसीमुल हक
पिता का नाम SM लाइक अकबर। ये हमारा पासपोर्ट है, मोहम्मद वसीमुल हक, पिता का नाम SM लाइक अकबर। डेट ऑफ बर्थ हमारा 30/6/1979। हियरिंग नोटिस आया, हियरिंग नोटिस के बाद मैंने ये हियरिंग नोटिस मिला। हियरिंग नोटिस के समय में मैं ट्रीटमेंट चेकअप के लिए हैदराबाद में था, ऑथोराइज लेटर करके अपने घर के लोगों को भेजा, पूरा डॉक्यूमेंट जमा दे करके। लेकिन आज जब 28 के बाद लिस्ट निकला, मैं आज चेक कर रहा हूँ नेट में, तो उसको एडजस्टियल दिखा रहा है। कहने का मतलब है कि इलेक्शन कमीशन क्या करना चाह रहा है। आप इलेक्शन कमीशन है एक न्यूट्रल संस्था ही होता है, लेकिन SIR का नाम पे पूरा पूरी एक राजनीतिक दल का वो होकर के काम कर रहे हैं। और हमारे जैसा, मैं 3 टाइम का पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव निर्वाचित हूँ। हमें निर्वाचित होने का 3 बार का सर्टिफिकेट गवर्नमेंट देता है। अब हमारा वोटर कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये तमाम कुछ हमने डॉक्यूमेंट्स जमा किया है। सब में हमारा नाम मोहम्मद वसीमुल हक, पिता का नाम उड़नों की ऊंचाई हर कदम पर। अंडाल थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे में दामोदर नदी में स्नान करने गए एक युवक की डूबकर मौत हो गई। मृतक की पहचान दिलीप बौरी वर्ष 35 के रूप में हुई है, जो स्थानीय बसका गोसाईडांगा इलाके का निवासी था। घटना सोमवार दोपहर करीब 12 बजे पुबड़ा घाट पर हुई। जानकारी के अनुसार दिलीप सुबह करीब 11:30 बजे स्नान करने घाट पर गया था। इसी दौरान असावधानीवश उसका पैर फिसल गया और वो नदी में गहरे पानी में डूब गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से युवक का शव नदी से बाहर निकाला गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।